बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Welcome students. I am Ghulam Hussain, your teacher of chemistry and biology in Professor Science Academy. Today we are going to study the subject of chemistry. First of all, we should know what is the need of subject of chemistry and means how chemistry is helpful in our daily lives. तो यानी कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ को गुजारने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। टू मेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जो है फूड्स, quality and quantity of foods, we chemistry knowledge helps us to synthesize different types of agrochemicals and helps us to analyze the soil quality, food qualities and others. Chemistry subject also helps us to convert the raw materials of fibers into cloths, to make dyes for cloths, यानी कपड़े ना सिर्फ बनाने में बल्कि कपड़ों को रंग देने में भी। इसी तरह से विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू नॉट ओनली टू ट्रीट ह्यूमन डिजीजेस बट आल्सो अदर्स। The knowledge of chemistry also provides us an opportunity to use metals in repairing or joining fractured bones. Also, we use the properties of metals to make different types of alloys like steel, bronze, brass. Similarly, with the help of knowledge of chemistry, we have developed a new chemistry that is called petrochemicals, in which we also synthesize different types of plastics. You can see in this figure that different types of plastic and their uses are even that we have bulletproof plastic, which is not only used to make cabins but also bulletproof jackets for soldiers. With the knowledge of chemistry, we also make different types of paints that helps to protect our metals from decaying and to synthesize pesticides in agriculturing. Dear students, I have given you a little introduction about the science and technology of chemistry, which helps us to survive in this changing lifestyle. Now let's start basic concept of chemistry. First of all, we define the chemistry: study of properties and composition of matter and reactions given by matter is called chemistry. या कि 9th की किताब में से मैंने डेफिनेशन ली है। तो इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हमने मैटर की 3 चीज़ों को स्टडी करना है: प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसके बाद जो है वो हमने इसकी जो है वो रिएक्शंस गिवन बाय मैटर। तो सिंपली फिर हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ मैटर। देन व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैज़ mass and volume is called matter. Mass and volumes are the quantities. These are the quantities which are used to measure matter. जिस तरह से हम हर हीट को जो है वो टेम्परेचर से मेजर करते हैं, तो इसी तरह से मैटर को जो है, अगर मैटर सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए हम मैस को इस्तेमाल करते हैं, और अगर लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म में है तो फिर वॉल्यूम। बहरहाल एग्जांपल्स: गैशियस फॉर्म में जो मैटर पाया जाता है वो एयर है, लिक्विड फॉर्म में वाटर, इथेनॉल, और सॉलिड्स में मेटल्स, क्लॉथ, प्लास्टिक एटसेट्रा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर, while chemistry deals with the study of living and non-living matter both. There is a allied science, biochemistry, in which the chemicals present in living organisms and their role in living organisms are studied. What is the difference between physics and chemistry? Physics deals with the study of relationship between matter and energy.
Chemistry also deals with the matter and energy, but with a difference. When the matter is changing its chemical form, then what are the energy changes taking place? Just it is the part of chemistry. ठीक है ना जी। यानी जब हम भी मैटर और एनर्जी का तल्लक डिस्कस करते हैं, लेकिन उस वक्त जब मैटर अपनी कोई केमिकल फॉर्म चेंज करता है, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह को स्टडी करते वक्त, उस वक्त। अदरवाइज वी डू नॉट एवरी टाइम फोकस ऑन द एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर। मैटर हैज़ अदर features like properties and composition. These are the main focuses of chemistry. How we basically classify the matter? Basic classification of matter में हम मैटर को जो है वो पहले आपकी 9th की किताब में से मैं डायग्राम दिखाता हूँ। मैटर को पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड पे मिक्सचर है, राइट साइड पर क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस प्योर मैटर कहलाता है। उसकी फिर आगे 2 किस्में हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर की भी 2 किस्में हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, जिसमें सॉल्यूट मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट जैसा फेज़ इख्तियार कर लेता है, और जबकि हेट्रोजीनियस में सॉल्यूट जो है वो अपना फेज़, अपना फिजिकल स्टेट नहीं बदलता। ट्रू सॉल्यूशन में जैसे आप चीनी को पानी में डालेंगे तो चीनी का सॉलिड स्टेट ख़त्म हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएगा। जबकि अगर आप आटे को या मट्टी को पानी में डालेंगे तो वो पानी में बिखर जाएगा, हल नहीं होगा। तो ऐसों को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द सब्सटेंस। प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस and it is further divided into 2 categories, element and compound. What is element? The substance in which all atoms are of similar type are present. एक ही जैसे एटम्स अगर किसी सब्सटेंस में पाए जाते हैं तो वो क्या है, वो एलिमेंट है। और एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, how the element substances are described by, they are described by alphabetic representation of an element. These alphabets that represent an element are called its symbol. For example, for hydrogen H, हीलियम He, कार्बन C, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, पोटाशियम के लिए कैलियम। ये पोटाशियम के लिए कैलियम क्यों आया है? पोटाशियम कैलियम एक्चुअली लैटिन वर्ड दैट वाज फर्स्टली यूज्ड for potassium. Now the second type of substance is compound, the substance in which different atoms, उसमें same atoms थे, इसमें different atoms of elements, अगर atom different है तो automatically elements भी different है, are present in a definite proportion in a combined form. वो कंबाइंड होते हैं आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से। जैसे एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with definite proportion to represent a compound. Example given वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के लिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, इसी तरह से। सेकंड टाइप ऑफ मैटर, इम्प्योर मैटर। फर्स्ट वन वाज सब्सटेंस, सेकंड B is now impure matter is called mixture. इसकी एग्जांपल्स एयर है, solution of salts in water, alloys etc. Dear students, here I have given a diagram from your 9th class. What are the differences between compound and mixture? You just have to revise. No need to learn. फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपसे कोई इतने डिफरेंसेस नहीं पूछेगा कि ये अब यहाँ पे आपके नंबर बहुत कीमती हैं, हम यहाँ पे बस आपको रिवाइज करवाने के लिए ये पॉइंट्स दे रहे हैं। तो 7 पॉइंट्स हैं, ये ज़रा रिवाइज कर लें, इनको दोबारा से देख लें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिग्नी केमिकल फार्मूला? कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करने के फ़ायदे क्या हैं? एक, लिखना बोलना आसान, ठीक है ना जी। दूसरा, ये उस कंपाउंड के मतलब ना सिर्फ क्वालिटेटिव, यानी ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बल्कि उनकी क्वांटिटीज़ भी बताता है कि वो किस किस प्रपोर्शन में पाए जा रहे हैं। और मोल्स के कंसेप्ट की मदद से आप जो है वो केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए एक कंपाउंड के अंदर सिर्फ मालिक्यूल्स ही नहीं, बल्कि उस कंपाउंड के अंदर जो है वो एटम्स की तादाद तक भी काउंट कर सकते हैं। Dear students, in chemistry we have 3 methods to describe, 3 ways to describe substances in chemistry. हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपने सब्सटेंस को, मैटर को 3 तरीक़ों से जो है वो
डिस्क्राइब कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन नेम्स, सेकंड वन इज़ केमिकल नेम्स, थर्ड वन इज़ केमिकल फार्मूला। यू कैन सी इन दिस टेबल, मिसाल के तौर पर मैंने पानी के लिए कॉमन नेम्स और भी हैं, एक्वा, वाटर, केमिकल नेम हाइड्रोजन मोनोक्साइड H2O, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, मार्शी गैस मीथेन एट्सेट्रा। ठीक है ना जी। तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो केमिकल फार्मूला है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू राइट एंड एक्सप्लेन। नाउ इफ केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर, देन बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। Now we define the atom, the smallest particle of an element which may or may not exist independently in nature and shows all the chemical reactions of that element। और वो उस एलिमेंट के तमाम केमिकल रिएक्शंस को शो करता हो, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। रिमेंबर, मैंने पहले भी अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। आपके पास किसी एलिमेंट का एक एटम है तो वो उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। आपके पास उसी एलिमेंट के जो है वो 10,000 1 करोड़ एटम्स हैं, तो वो 1 करोड़ एटम ही भी उसी एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, वो एटम जो कि नेचर में अकेले रह सकते हैं वो नोबल गैसेस के एटम्स हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको अकेला अकेला रहना है। ये मालिक्यूल भी हैं, ये एटम्स भी हैं। ठीक है ना जी। ऑल नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अकेले अकेले नहीं रह सकते, उनको अकेले अकेले नहीं रह सकते। जैसे हाइड्रोजन को रहने के लिए या तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ H2 की सूरत में, या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ, नाइट्रोजन को N2, या हाइड्रोजन के साथ अमोनिया एट्सेट्रा, इस तरह से रहना पड़ता है। तो बेटा जी, केमिस्ट्री के 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बट व्हाट आर द मेजर फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री about to discuss in about the matter? Number 1 is properties of matter or properties of substance. Number 2 is structure and composition of matter or substance. Reactions of matter, reactions given by matter or reactions of substance. So what are properties? Characteristics which differentiate between substances, वो खसूसियात जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। मसलन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि एक गैस है जो जलती हुई चीज़ों को और जलाती है, और एक और गैस है जो जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है। मुझे दोनों में के नाम बता दें। मैंने आपसे नाम पूछे हैं, बताए नहीं। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, करैक्टरिस्टिक्स। आपने नाइट्रोजन का नाम नहीं लिया, आपने जो है वो क्लोरीन का नहीं लिया, आपने लिया जी ऑक्सीजन जो चीज़ों को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ों को बुझाती है। आपने करैक्टरिस्टिक्स की मदद से बहुत सारी गैसेस में से सिर्फ उन गैसेस को डिफरेंशिएट कर लिया, पहचान लिया। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी सब्सटेंस की, तो इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग how the atoms are formed from subatomic particles and how these atoms chemically combine through bonds to make molecules and formula units। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स फिर किस तरह से सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं, ये सारा कुछ हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में डिस्कस करना है। रिएक्शंस गिवन बाय मैटर, दीज in this aspect of matter we will study how the chemicals are changing from one form of matter to other। जैसे हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल है, आग पकड़ने वाली है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है वो आग लगाने वाली है, यानी जलाने वाली है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है जो कि चीज़ों को बुझाता है। तो यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब केमिकल रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस में स्टडी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो है वीडियो देखने से पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा आपका होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें ये छोटे छोटे से 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन केमिस्ट्री, व्हाट आर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री, हाउ केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स, इज़ हाइड्रोजन
an atom or an element. What is the symbol of boron? Beryllium is the symbol of dash. Compound is made of different elements. Why it is considered pure? ठीक है ना जी, क्यों? क्योंकि उसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंपाउंड के अंदर अपने आप को हमेशा रखते हैं, कॉन्स्टेंटली रखते हैं। तो जो फैक्ट कांस्टेंट होता है वो प्योर होता है। इसी तरह से जो है डिफाइन एटम, इसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया है। वाई इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फॉर्म रिकमेंडेड, तो आपको वो एक फ्लावर वाली फिगर आपकी 9th की किताब में से कराई है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ enjoy this video and learn from this video.